Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm honored to have been invited to this 15th National Convention on Student Quality Circles. I'm grateful to equip Pakistan and Modern Age School and College for this opportunity. It's always a pleasure to come back to my birthplace and be part of many wonderful things that are happening in this town, which is a very progressive town, and it is known for its strong history of quality educational institutions. Today, I speak to you on a subject that is not only very close to my heart as a woman and as a researcher and teacher of gender as well as development studies, but it is also of key importance for improving educational pedagogies, leading to advancement in quality of education that ultimately leads to better outcomes, not just for individuals, but for the society on the whole. Keeping in view that most of us can speak English, since our medium of instruction is English, but we think and feel in languages other than English. I keep on switching between English and Urdu again and again to sort of engage my audience, because I think that the purpose of any keynote speech is to strike a chord with your audience. अगर मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक नहीं पहुंचा सकती तो कोई भी कीनोट स्पीच जो है वो महज एक स्पीच बन के रह जाती है और उसका हमारी जिंदगियों पर और हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता. Today I am here to make a case for gender inclusive student quality circles. आपने देखा होगा कि आपका जो थीम है इस पूरे इवेंट की, इस पूरे नेशनल कन्वेंशन की, वो जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पे है. जब मैंने आपको ये कहा कि टुडे आई एम हियर टू मेक अ केस फॉर जेंडर इंक्लूसिव स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स, आई वुड आल्सो लाइक टू रीइटरेट दैट आई एम हियर टू मेक अ केस फॉर जेंडर सोसाइटी. ठीक है, वो सोसाइटीज़ जो ये एज्यूम करती हैं कि हम जस्टिस की बात जब कर रहे हैं तो हर कोई उसमें इंक्लूडेड होगा, ये उनकी खाम ख्याली होती है. क्योंकि हमेशा कुछ सोसाइटीज़ के अंदर पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, पावरफुल आइडियाज़ होते हैं, hegemonic notions होते हैं, what it means to be a human being, what it means to have rights, कौन से rights होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से demands legitimate है और कौन सी demands legitimate नहीं है, और उनका पैमाना जो है वो caste, class, nationality और gender पे dependent होता है. और ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ऐसे होता है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो ज़्यादा एलिटिस्ट होते हैं और उनका कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर होता है, उनका कंट्रोल आइडियाज़ के ऊपर होता है, और वो आपको ये देखने ही नहीं देते कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स हैं, उनके दिमाग में क्या कंसेप्शन है जस्टिस की, क्या कंसेप्शन है राइट्स की, वो किस चीज़ को सही समझते हैं और किस चीज़ को गलत समझते हैं. तो ये हेजोमनी जो होती है सोसाइटीज़ में, ये बहुत इंट्रेंच्ड होती है, और जिस हेजोमनी का मैं बार बार यहाँ जिक्र करूँगी वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में मेल प्रिविलेज होता है, ठीक है, और मेल पावर होती है. तो बिफोर आई एक्चुअली speak on the subject of student quality circles, I'd like to set a little stage and give you a slight background to establish a context for my talk. And my talk today is titled as Equality for Quality, Pathways to Gender Inclusive Student Quality Circles. Numerically, women constitute half of humanity, and their influence transfuses all elements of society, economy, and polity. Yet, they are subject to significant disadvantages due to deeply rooted patriarchal traditions, norms, and structures. हमारे यहाँ भी ये बार बार लोग कहते हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन है पाकिस्तान में, और अगर वो किसी तरह पाकिस्तान की तरक्की में शामिल हो जाएंगी तो पाकिस्तान जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को जल्द तय कर लेगा. ठीक है, एक तो ये मिसकंसेप्शन है ख़वातीन 50% नहीं है, 50% से कम है. पाकिस्तान में सेंसस हुआ तो पता चला कि 49% ख़वातीन और 51% मर्द हैं. और किसी भी हेल्दी सोसाइटी में नेचुरल ऑर्डर ऑफ जो अल्लाह ने बनाया है, अगर वो फॉलो किया जाए तो सोसाइटी में देयर शुड बी मोर सर्वाइविंग विमेन देन मेन.
ٹھیک ہے, یعنی وہ سوسائٹیز جن میں خواتین کو ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, ایجوکیشن, کیئر اینڈ نرچرنگ میں برابر کے وسائل ملتے ہیں, تو ان تمام ممالک میں یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں خواتین کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. یہ لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز اور ہماری طرح کے ممالک جن میں بہت سارے پرابلمس ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کا جو توازن ہے وہ کم ہوتا ہے, تو ہم 49% ہے. پھر دوسری مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر خواتین کام کرنا شروع کر دیں گی تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. 100% women work in Pakistani society. ٹھیک ہے, the work that is done within the household is also work and it contributes to the آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو فار ایگزامپل there is this general economic problem جس کو لوگ بار بار مینشن کرتے ہیں ٹیکسٹ بک آف اکنامکس میں, کہ if you marry your housekeeper there is a fall in the GDP of the country. ٹھیک ہے, when she was your housekeeper you were paying her for the services provided. Now that you have married her, she's still providing the same services. Now you're only not paying her for those, and hence it's not accounted for in the GDP. تو اس لیے میں بچوں کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ 100% خواتین کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی خواتین جو ہے وہ کھیتوں میں کسان بھی ہیں, مزدور اور دہقان بھی ہیں, برک کلنس پہ, کنسٹرکشن سائٹس پہ, سڑکوں پہ روڑی کھودنے کا کام کرنا, ڈومیسٹک لیبر اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں کرنا, چھوٹی بچیاں جن کو کھڑا ہونا آتا ہے تو ان کو سنک کے آگے کھڑے ہو کے برتن دھو سکتی ہیں تو ان کو لوگوں کے گھروں میں کام پہ لگایا جاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی آبادی میں جو ہمارا سینسس کہتا ہے کہ خواتین کی تقریباً 30% اکنامک ایکٹیویٹی ہے, وہ کسی حد تک بڑی ماسکڈ ہے کیونکہ تمام خواتین کام کرتی ہیں. اگر آپ سب بچے کبھی موٹر وے پہ چاول کی جب منجی لگ رہی ہوتی ہے تو اس میں سفر کریں پنڈی سے لاہور, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دائیں بائیں طرف دونوں جب منجی لگ رہی ہوتی ہے, چاول کی جب فصل لگ رہی ہوتی ہے, تو آپ کو کھیتوں میں لال پیلے نیلے سبز دوپٹے نظر آئیں گے, وہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہماری زراعت کے اور معیشت کے کچھ ایسے سیکشنز ہیں جیسے فار ایگزامپل کاٹن پیکنگ ہے, وہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ خواتین کرتی ہیں. روڑی کٹنے کا کام ہمیشہ خواتین کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوتی یا ان کا کام جو ہے وہ ویلیوڈ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جو جتنی بھی فیبرک ہے, چاہے وہ اکنامک ہو, چاہے وہ آپ کی سوشل ہو, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل ہو, وہ ہر لیول کے اوپر ہے, لیکن ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ریکگنائزڈ نہیں ہے, ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے ان چیزوں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جانا ہے کہ اگر خواتین کام کریں گی تو ملک ترقی کرے گا. خواتین کام کر رہی ہیں, اور یہ آپ کی پیٹریارکل نوشنز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں جو یہ جینڈر اسٹیریوٹائپس بناتی ہیں, اور آج ہم جینڈر اسٹیریوٹائپس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ میں نے آپ کو کہا کہ ہاف آف ہیومینٹی خواتین ہے, لیکن جب آپ نیشنل اسٹیٹسٹکس کرتے ہیں ملکوں میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ شاید وہ ترقی میں اس طرح وہ پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں, ان کے پاس وہ پریویلیجز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ رائٹس نہیں ہیں, اور تقریباً کافی سالوں سے, خاص طور پر 1950s کے بعد سے, جب سے تمام ممالک میں یہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا یعنی جو پوسٹ کولونیل ورلڈ ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ایجنڈا شروع ہوا, تو وہاں سے بہت ساری ایفرٹس شروع کی گئی in trying to reduce this gender gap. So for example, آپ لوگوں نے بار بار یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا سنا ہوگا, تو ایجنڈا 2030 یعنی 2030 ایجنڈا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک ایسی ریزولوشن ہے جو یو این جنرل اسمبلی میں 2015 میں پاس کی, and it focuses on achieving 17 goals within 15 years. ٹھیک ہے, اور ان 17 goals میں empowering girls and women اس کی بڑی special importance ہے. Pakistan has also affirmed its commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development by adopting the Sustainable Development Goals as its own national development agenda through a unanimous National Assembly resolution in 2016. Since then, Pakistan has tried to mainstream these goals in national policies, in its strategies, in its 5-year plans, provincial growth strategies. پاکستان کے جتنے بھی لانگ ٹرم پلانس بنتے ہیں وہ ان ایس جی ڈیز کو بیچ میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2018 میں جو ہماری پچھلی پی ٹی آئی کی لانگ ٹرم گورنمنٹ تھی, اب تو اگلی آئے گی تو پتہ چلے گا, اس لیے میں آپ کو پچھلا بتا رہی ہوں. They designed and approved a national SGD framework that foresees a national vision to prioritize and localize SDGs. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پرائیورٹائز کریں گے اور لوکلائز کریں گے,
तो नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल, जैसे आप स्कूल्स हैं, आप भी अपने तमाम एफर्ट्स के अंदर कोशिश करते हैं कि उनको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इनमें 2 गोल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक SDG 5 है which pertains to achieving gender equality, और गोल 4 है जो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, कि ये हम अचीव करेंगे। खाली एजुकेशन नहीं, दे से इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो हर चीज़ के साथ ये लफ्ज़ क्वालिटी लिखा हुआ है। आप देखिए मैंने 2 गोल्स इसलिए हाईलाइट किए हैं कि एक जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है और दूसरी एजुकेशन क्वालिटी की बात कर रहा है जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब कई साल, मैंने आपको कहा डेवलपमेंट एजेंडा 1950 से ग्लोबली शुरू हुआ, 1960s में जो हमने अयूब खान का दौर देखा उसमें हार्वर्ड प्लान आया, तो हर तकरीबन डेकेड में हर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो मुल्क की तरक्की में इन गोल्स को अडॉप्ट करे। और शुरू में इसमें जेंडर जो है वो इग्नोर किया गया, और वो 70s और 80s के बाद ग्लोबली एक जो ख़वातीन की राइट्स बेस्ड मूवमेंट्स थी उसके साथ और सिविल राइट्स मूवमेंट्स के साथ साथ ये इनको फिर थोड़ी सी प्रोमिनेंस मिली। लेकिन जब इतने साल गुजर गए हैं 1950 से अब तक 80 साल से ऊपर हो गए हैं, एक डेकेड्स होते हैं, और साथ साथ आप देखते हैं पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए हैं और हम कमिटमेंट कॉन्स्टेंटली करते हैं तमाम गोल्स को अचीव करने के। तो हमने क्या ये गोल्स अचीव किए हैं, इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए, बिकॉज आई हैव टू सॉर्ट ऑफ जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप जेंडर को इंक्लूड करें अपने स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स में, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि गैप कहाँ पे है, क्यों इंक्लूड करें। पाकिस्तान के जो स्टेटिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट के वो काफ़ी डिसमिल हैं। सो फॉर एग्जांपल UNDP जो है वो हर 2 साल के बाद एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। आखिरी जो है वो 2020 और 2021 की पब्लिश हुई, और उसके अंदर वो आपको रैंक करता है डिफरेंट क्राइटेरिया में। उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल अचीवमेंट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है। अनफॉर्चुनेटली पिछली रिपोर्ट में पाकिस्तान वाज 161 आउट ऑफ 192 कंट्रीज, तो हम मतलब मिडलिंग परफॉर्मिंग कंट्रीज में भी नहीं आ रहे हैं, हम बिल्कुल लोअर डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं। अच्छा, एज फार एज एम्पावरिंग गर्ल्स एंड विमेन इज कंसिडर्ड, हम ऐसा करते हैं कि हम कोई और देख लेते हैं मार्कर जिस पे स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए जाते हो। अभी आपके सामने स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, उसमें उन्होंने कहा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है किसी भी क्वालिटी सर्कल का, कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात जहन में रखें, मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, आप जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सोल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जहाँ किसी इलाके में कोई चोरी चकारी होती है तो पुलिसिंग इम्प्रूव कर देते हैं और गरीबों पे पैरा डाल देते हैं, कहते हैं यकीनन ये सब जो कच्ची आबादी है ये चोरियाँ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये है। लेकिन हमने प्रॉब्लम को चूंकि रॉन्गली आइडेंटिफाई किया होता है तो हम रिसोर्सेज गलत जगह पे लगा रहे होते हैं। चोरियाँ तो अमीर लोग भी करते हैं, ठीक है, और छोटा चोर क्या एक बैटरी आपकी चुरा लेगा, बड़ा चोर क्या करेगा, आधा मुल्क खा जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी अपनी रिसोर्सेज को एक छोटे चोर को पकड़ने में लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया वैसे हमने उसके बारे में सोचा और सोल्यूशन भी जो हमने निकाला वो लॉन्ग-साइडेड था। और एजुकेशन के फील्ड में इसकी बड़ी मिसालें हैं कि प्रॉब्लम रॉन्गली आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से मसाइल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में बहुत सारी स्टडीज़ ये देखने के लिए की जाती थी कि स्कूल्स में जो मुख्तलिफ बच्चों के ग्रुप्स होते हैं उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वहाँ पे रेशियल इनइक्वालिटी बहुत है ब्लैक्स और वाइट्स में, तो वो कॉन्स्टेंटली ये कहते थे कि जो बच्चे पोरर नेबरहुड से कुछ बच्चे पोरली परफॉर्म करते थे, फॉर एग्जांपल जो नॉन वाइट्स होते हैं वो पोरली परफॉर्म करते थे और वाइट चिल्ड्रन जो है वो बेहतर या मिडिल क्लास चिल्ड्रन बेहतर परफॉर्म करते थे। एक स्कूल एक है गवर्नमेंट का है, लेकिन वर्किंग क्लास चिल्ड्रन पोरली परफॉर्म करते थे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो वर्किंग क्लास बच्चे होते हैं, अब क्या टीचर्स उनसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, यानी वर्किंग क्लास बच्चों को और मिडिल क्लास बच्चों को, या उनकी जो माहौल जिससे वो निकल के आते हैं वो डिफरेंट है वर्किंग क्लास बच्चों का और अर्बन मिडिल क्लास बच्चों का। तो अब हम रिसोर्सेज कहाँ डालें, क्या हम उनकी नेबरहुड्स को इम्प्रूव करने में डालें या हम क्या उनके स्कूल में टीचिंग मेथोडोलॉजीज को चेंज करें, ठीक है। तो इसमें बड़ी बड़ी लंबी स्टडीज हुई, तो उन्होंने
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये कहा कि समटाइम्स ये होता है कि मिडिल क्लास भी इतने रिच नहीं होते लेकिन उनके पास सोशल कैपिटल बहुत होता है, यानी उनके पेरेंट्स रिलेटिवली पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चों से बात करते हैं, उनके बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस होती है। तो जब आपको मिलता है गर्मी की छुट्टियाँ कैसे गुजारी, ट्रेन का सफ़र कैसे किया, तो जिस बच्चे ने गर्मी की छुट्टियाँ गुजारी, जिस बच्चे ने ट्रेन का सफ़र किया, जिसके माँ बाप ने उसको अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किए घर में, वो तो इस पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जिसकी माँ बेचारी सारा दिन किसी के घर बर्तन धोती है और वो उसने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया और उसको कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो गर्मी की छुट्टियाँ गुजारे, उसके बच्चे को पता ही नहीं है एक्सपीरियंस क्या है, तो वो उस ऐसे में क्या लिखेगा। ठीक है, तो जैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आप फिर रिसोर्सेज वैसे ही डाइवर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली कहती हूँ कि हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जेंडर के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें पाकिस्तान के, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराता है हर साल, और उसमें वो एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है पहले ना, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जेंडर को इंक्लूड किया जाए, तो वो एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल। And this actually examines the gap between men and women in 4 fundamental categories: economic participation and opportunities available to women। ठीक है, ये भी important है, हम कह रहे हैं ख़वातीन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी उनको अवेलेबल है, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और फिर वो तमाम कंट्रीज को रैंक करता है इसके ऊपर। पाकिस्तान की 2023 की परफॉर्मेंस इसके ऊपर है 142 आउट ऑफ 146, यानी हम इतना पुअरली इस जेंडर गैप पे परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे नीचे कौन से ममालिक हैं, चैड, वॉर, जिन मुल्कों में सिविल वॉर लगी हुई है, जिन मुल्कों में अफगानिस्तान, ये ममालिक हमसे बिल्कुल नीचे आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे, विच इज़ लाइक सच अ शेम कि हम 142 इसके ऊपर रैंक करते हैं। इंडिविजुअल कंट्री कैटेगरीज में हमारी वर्स्ट रैंकिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 143 आउट ऑफ 146। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने पहले भी चैलेंज की, हो सकता है इन स्टेटिस्टिक्स में ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिस तरह डिफाइन करते हैं हमारे सेंससेस, उसमें औरतों की लेबर जो है वो काउंट ही नहीं होती। अच्छा, उसका क्या है, वो फिर अगेन जेंडर स्टीरियोटाइप से उसका ताल्लुक है। सबसे पुअरली हम परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एजुकेशनल अटेनमेंट में भी हम कुछ अच्छे नहीं हैं, 138 आउट ऑफ 146। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हम बहुत अच्छे हैं, 95 आउट ऑफ 146, बेहतर, अच्छे नहीं है, बेहतर है। उसकी ये वजह ये है कि हमने को 2000 में मुशर्रफ एरा में 33% औरतों की रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में फिक्स कर दी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अनइलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में बिठा देते हैं, नंबर काउंटिंग में हम फिर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर इसकी कोई होती ना कि ख़वातीन आपके ये बच्चे जो इधर बच्चियाँ बैठी नहीं है, ये बड़ी होकर असेंबलियों में बैठती, तो फिर इनकी पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट होती, यानी ये कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इतने ही अच्छे थे तो फिर वो क्यों नहीं ट्रांसलेट हुई कि वो बाकी जो कैटेगरीज है, एजुकेशनल जो अटेनमेंट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही। उसकी यही वजह है जो मैंने कहा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। जो ख़वातीन असेंबली में बैठी हुई हैं वो आप में से नहीं है, उनको नहीं पता कि ख़वातीन की जो हसूल तालीम है उसकी राह में क्या रुकावटें हायल है, उनको कैसे हल करना है। वो एलीट पॉलिटिकल फैमिलीज़ या एलिटिस्ट फैमिली से करती हैं, तो वो आम ख़वातीन के इश्यूज़ को, यानी वो मजदूर पेशा ख़वातीन, किसान ख़वातीन, उनके मसाइल को तो वो रिप्रेजेंट नहीं करती ना, तो इसलिए वो ट्रांसलेट नहीं होता। सो वन नीड्स टू आस्क दिस क्वेश्चन, इतने डिस्मल हमारे जो स्टेटिस्टिक्स है कि व्हाट हैव वी डन इन द लास्ट 76 years ऑफ पाकिस्तान's एक्जिस्टेंस, क्या हमें 100 और मज़ीद चाहिए साल टू क्लोज दिस जेंडर गैप एंड मेक दिस a better society for men, women, girls, boys? क्या 100 साल और लगेंगे या we can do some better? मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोकल ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, जैसे आप लोगों का कि ये नेशनल कन्वेंशन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो हम अपनी कमिटमेंट टू गोल्स ऑफ जेंडर जस्टिस या जेंडर इंक्लूजन, मैं लफ्ज़ जेंडर जस्टिस इस्तेमाल करती हूँ जेंडर इंक्लूजन से, क्योंकि जेंडर इंक्लूजन नॉट नेसेसरली ट्रांसलेटेड टू जेंडर जस्टिस। जैसे मैंने आपको कहा ना कि असेंबली में 33% रिजर्व सीट्स रख देने से जेंडर इंक्लूजन का
डब्बा तो टिक हो गया है, लेकिन जेंडर जस्टिस का इसलिए नहीं हो रहा कि नंबर्स में कौन लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या कंसेप्शंस हैं अबाउट जेंडर, उनकी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़माने में मैं टीवी पे देख रही थी तो मजहबी जमातों की ख़वातीन भी असेंबली में बैठी हुई होती हैं और वो कह रही थी कि इस्लाम में औरत का असल मकाम जो है वो उसके घर के अंदर है और वो अपना ये रोल पूरा कर ले तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने दिल में सोचा कि ये खाते पीते घर से होंगी इसलिए ऐसे कर रही हैं, वो मेहनत का शौहरत जो रोज़ कुआं खोदती है और रोज़ उसमें से पानी निकालती है तो उसके बच्चे पेट भर के खाना खा के सोते हैं, अगर वो रोज़ कुआं खोदने नहीं निकलेगी, घर से पानी नहीं निकालेगी तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे। वो बेचारी क्या खुशियाँ जाने, चादर और चार दीवारी और घर का तहफ़्फ़ुज़ और घर के अंदर। तो ये देखिए ना, अब ये भरे हुए पेटों की कहानियाँ हैं कि ख़वातीन जो है वो उनका असल मुकाम तो घर में है, ये भरे हुए पेटों की कहानी है और ये रियलिटी भी नहीं बताती। 220 200 एंड अप तो 25 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% पीपल लिव अंडर लेस देन $2 a day, ठीक है, वो इस किस्म की बातें कभी भी नहीं करते, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस क्या असेंबलीज के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं कि नहीं होती, उन वर्किंग क्लास पीपल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो नेशनल कन्वेंशन है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड देन commit to the goal of gender justice right from the start. That is when we are teaching these students how to identify problem, how to analyze this problem, how to look for solutions, ठीक है, यहीं से हमने ख़वातीन को इसमें इंक्लूड करना है, यहीं से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है, यहीं से उन्होंने बताना है कि हमारी टेक क्या होगी, और यहाँ से हमने उनको सिखाना है कि आपने अपनी आवाज़ कैसे रेस करनी है, और हमने बच्चों को, लड़कों को सिखाना है कि उन्होंने दूसरे की आवाज़ जो उसके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसको कैसे एक्नॉलेज करना है, ठीक है, और दोनों ने कोलैबोरेटिवली मिल के सॉल्यूशंस जो है डिज़ाइन करने हैं which will be mutually beneficial for the entire population। यानी इस स्टूडेंट बॉडी से शुरू होगा और फिर ऐसे will work upwards collectively towards the betterment of the society, ठीक है। So addressing gender equality and women's empowerment in student quality circles in schools brings much needed change at the grassroots, as students are the building blocks of this society and they can work for a better Pakistan। यहाँ पे I am assuming कि वक्त गुजरने के साथ आप पॉलिसी मेकर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ये किसी एक का काम नहीं है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे मौक़ों पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक लर्निंग यहाँ पे हो रही है और एक लर्निंग उनकी घर पे हो रही है, ठीक है। एक वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, इनके लिए इम्प्लीमेंट करनी है, इन सब का एक जगह होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं ना तो क्वालिटी के तो बड़े फ्रेमवर्क्स हैं और अक्सर फ्रेमवर्क्स जो है उसमें जेंडर इक्वालिटी को या विमेंस एम्पावरमेंट को या जेंडर जस्टिस को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ख़वातीन को हर चीज़ में आगे आगे करें, जेंडर जस्टिस के बारे में नहीं देखते, क्योंकि मेन एंड वुमेन मे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड नीड्स ना, ये बात तो मानने वाली है कि हर इंसान के फ़र्क हो सकते हैं, जेंडर की बेस पे भी उनके फ़र्क हो सकते हैं, तो उनको एक फ्रेमवर्क में कैसे लाया जाए ताकि वो ज़्यादा क्रिटिकल और वैल्यू बेस्ड नोशन ऑफ क्वालिटी उसमें से इमर्ज कर सके ना, जो जेंडर को अकाउंट फॉर करती है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। इक्वालिटी तो अब अगर मैं आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगी कि वो लुकअप करें, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज़ का आज़म यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारे पास जेंडर स्टडीज़ का BSc है, जब बच्चे हमारे पास पहले आते हैं ना तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इसलिए मैंने भी टर्म जेंडर इक्वालिटी यूज़ की, लेकिन हम इस पर बड़ी डिबेट है कि क्या हमें इक्वालिटी चाहिए या हमें इक्विटी चाहिए, ठीक है, इस पर बहुत डिबेट है, लेकिन चूँकि जेंडर इक्वालिटी की टर्म UN कॉन्स्टेंटली यूज़ करती है, उसका ये है वो इससे लिबरल वर्ल्ड व्यू से वो बोरो करते हैं, वो ये है बेसिकली कि जो आपका ह्यूमन एसेंस है, सारे ह्यूमन बीइंग्स रैशनल थिंकर्स होते हैं और उनको पता होता है उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, लेकिन सदियों से ये होता आया कि ख़वातीन को अपनी इंटरेस्ट को, अपनी नीड्स को वॉइस करने की नहीं इजाज़त भी नहीं दी जाती थी और ये समझा जाता था कि वो इतनी रैशनल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है जितने मर्द हैं, ठीक है। सो मेन आर मोर रैशनल देन वुमेन, वुमेन टेंड टू बी मोर इमोशनल। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है ना, उन्होंने ये
कॉन्स्टेंटली हैमर इन किया कि women भी जो है वो they have the same ability to reason as men and they can choose the best means to achieve their goals. तो फिर ये जो इक्वालिटी का क्लेम है ये इस बेसिक ग्राउंड्स पे औरतों और मर्दों की बराबरी का बिल्ड करता है कि दे बोथ आर रैशनल बीइंग्स, इसलिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए टू फुली एक्सरसाइज देयर रैशनैलिटी विदाउट कंस्ट्रिक्टिंग जो आपके सोशलाइजिंग प्रोसेसेस होते हैं, जो खवातीन को बताते हैं कि भाई लड़कों को बताते हैं कि तुम चाइल्ड केयर में अच्छे नहीं हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ कोई बाहर रोजी रोटी कमाओ, और खवातीन को कहते हैं कि आपके लिए आप बाय नेचर ऐसी हैं कि आप केयरिंग ड्यूटीज अच्छी कर सकते हैं। हालांकि अदर वे राउंड भी हो सकता था। एक तो ये कि मेन लूज आउट ऑन हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, बच्चों के और बाप के साथ वो ताल्लुकात ही बिल्ड नहीं होते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बाप को ब्लेम करते हैं ये तो है ही माँ के साथ, इसने ब्रेन वॉश किया हुआ है। वो बात नहीं है, क्योंकि सोशलाइजेशन उन्होंने की होती है ना बच्चों की सारी जिंदगी, तो बच्चे फिर इन्वेस्ट किया होता है उन्होंने। और मर्दों ने चूंकि वो जो उनके लिए रोजी कमाने के जो उनके ऊपर लगा हुआ है लेबर, उसके अपने प्रेशर्स हैं, यानी ये जब वो इस पर पूरा नहीं उतर सकते तो वो कॉन्स्टेंट ये क्राइसिस में रहते हैं, विच इज नाउअडेज कॉल्ड द क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी। ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा सा इश्यूज है। अच्छा, एम्पावरमेंट क्या है? जेंडर एम्पावरमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो जेंडर एम्पावरमेंट ये है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है, इसी किस्म का प्रोसेस है जैसे अभी आपने किया, that enhances the ability of any group that is powerless or disadvantaged to challenge, यानी वो पहले चैलेंज करे फिर चेंज करे in her own favor the existing power relations that places them in subordinate economic, social and political positions. मैंने अभी आपको जेंडर गैप रिपोर्ट बताई है, उसमें बताया है कि खवातीन सारी की सारी जो है वो किस में है, सबॉर्डिनेट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोसेसेस में सबॉर्डिनेट है। वो चैलेंज कैसे करेंगे इन चीज़ों को? ठीक है, इसको हम एम्पावरमेंट कहते हैं कि उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करें। तो मैं किस चीज़ के लिए डिबेट कर रही हूँ कि जो आपके स्टूडेंट पॉलिटी सर्कल्स हैं उसमें आप ये दोनों चीज़ें डालें, जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट और द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, ताकि वो इमर्ज करें एज लीडर्स आउट ऑफ दोज ग्रुप्स। ठीक है, और फिर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, यानी लड़के और लड़कियां मिल के ये काम करें ताकि उन्हें एक दूसरे की बात सुनने, समझने और उसके सॉल्यूशंस, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को बिल्ड करने का मौका मिले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने जेंडर गैप्स मैंने भी हाईलाइट किए थे जेंडर रिपोर्ट ने, उसमें ये बात बहुत वाज़ेह है कि ख़वातीन तो बहुत पीछे रह गई हैं इन सारे एरियाज में। जब मैं आपको कहती हूँ कि जेंडर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, तो जेंडर इंक्लूसिविटी से मेरा ये मतलब नहीं है, फेमिनिज्म में हम टर्म यूज़ करते हैं एड वुमेन एंड स्टर। ठीक है, हमें एडिंग वुमेन एंड स्टर नहीं चाहिए। ठीक है, क्या आपने बस कहा कि हर हमने स्टूडेंट सर्कल में 10 लड़के थे तो हमने 2 लड़कियां भी डाल दी, असेंबली भरी पड़ी है मर्दों की, हमने 33% औरतें भी डाल दी, तो ये पूरा हो गया। सो वी डोंट वांट दीज एड वुमेन एंड स्टर टाइप मेजर्स। In fact, what we want something that ensures fundamental changes in the way people think. और उसका पहला स्टेप क्या होगा? जब मैंने कहा था pathways to gender inclusive student polity circles, पहला क्या होगा? breaking down stereotypes. ठीक है, stereotypes क्या है? हम सब जिस माशरे में पैदा होते हैं ना, हमें वहाँ जेंडर के सर्टन नोशंस जो होती हैं पहले हम घर से सीख के आते हैं, फिर स्कूल्स उनको रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, वो क्या रीइंफोर्स करते हैं? वो ये बहुत 1970 से ये डिबेट चल रही है, वो ये कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं या हमारे जो ख़वातीन के या मर्दों के बिहेवियर्स हैं वो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है। जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न अ वुमन आई मस्ट नॉट बी दैट क्लेवर इन मैथ्स। मैं गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हूँ, ठीक है, ये तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद अभी भी कभी कभी ऐसे करते हैं, फिर मैं ज़रा उनको घूर के देखती हूँ तो वो चेंज कर लेते हैं इस टॉपिक को। हमारे आगे कोई बुरी सी गाड़ी चला रहा होगा ना तो कहते हैं देखना मैं अभी इसको ओवरटेक करूँगा, ये कोई लेडी ड्राइवर होगी। ठीक है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि ड्राइविंग स्किल्स जो है ना वो अभी आपके टीचर ने बताया वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, सो अ गुड ड्राइवर इज द वन हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और वो अच्छा ड्राइव करता है। तो मैंने उनको बार बार ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ गाड़ी चलाती हूँ, ख़वातीन बहुत कम होती है सड़कों पे, 100 में से 98 बैड ड्राइवर्स ऑन द रोड आर मैन,
बट वी नेवर से कि ये पोर ड्राइवर्स हैं, ठीक है? इशारे पे नहीं रुकते, इशारे तोड़ देंगे, उल्टी साइड से ओवरटेक करेंगे। वर्स्ट है, आप बच्चे भी अब गाड़ी चलाते हो और एबटाबाद की तो वर्स्ट ट्रैफिक है ना, यहाँ एक और ये रूल कोई फॉलो करते हैं लोग ट्रैफिक के, एक टांग दूसरी लेन में डाल के चलाते हैं, यानी एक पैर ऐसे में ना साथ वाली लेन में भी रख लो, तो एक टायर उन्होंने डाला होता है कि बस हम किसी वक्त भी इधर आ जाएंगे, ठीक है? तो ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई जेंडर्ड बात है। बाहर के मुल्कों में जहाँ प्रॉपर ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और उनको लाइसेंसेस मिलते हैं और ड्राइवर की इंश्योरेंस होती है, ठीक है? ड्राइवर की इंश्योरेंस होती है, तो उससे स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि विमेन आर बेटर ड्राइवर्स देन मेन। अगर आप खातून हैं, अगर आप उम्र में ज़्यादा हैं, एज इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ अ गुड ड्राइवर, यानी जो लॉन्ग टर्म है तो उनकी इंश्योरेंस कम होती है, उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आप यंग हैं और बॉय हैं तो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है इंश्योरेंस, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक्सीडेंट ज़्यादा करेंगे, ये रैश ड्राइवर्स होंगे, ठीक है? तो स्टेटिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, प्रैक्टिस डिसाइड करती है, ईयर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, हमने एज्यूम किए कॉन्स्टेंटली। रिसर्चर्स भी जो पुरानी थी वो बड़ी सेक्सिस्ट रिसर्चर्स होती थी, वो ये कहती थी, एक है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जॉर्ज पी मर्डॉक, उन्होंने 224 सोसाइटीज़ स्टडी की एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उन सोसाइटीज़ को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इन तमाम सोसाइटीज़ में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि विमेन लार्जली डू कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग के टास्क, और मर्द जो हैं वो बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड नॉट टाइड टू द होम एंड दे कैन वेंचर अफार, सो दे लार्जली डू लंबरिंग, बड़े बड़े दरख्त काटना अमेज़न के जंगल्स में, और माइनिंग, क्वारिंग, मिलिट्री ज्वाइन करना, ये मर्द करते हैं। उन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जैसे मोबूती पिग्मीज होते हैं अमेज़न में, एबोरिजिनीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, इनको भी स्टडी किया और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को भी स्टडी किया, और अपना उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। बाद में एन ओकले जो बहुत मशहूर फेमिनिस्ट रिसर्चर्स हैं, उन्होंने उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आपने इन तमाम सोसाइटीज़ को एक मर्द की ऐनक लगा के देखा, एक वेस्टर्नर की ऐनक लगा के देखा, क्योंकि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में औरतें घर में रहती हैं, मर्द फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जो सोसाइटीज़ आपने स्टडी की उनमें 36 ऐसी सोसाइटीज़ थी जिसमें औरतें माइनिंग का काम करती हैं, लैटिन अमेरिका में हंटिंग करती हैं, तस्मानिया में सील हंटिंग जो है वो है ही फीमेल टास्क, नॉर्थ सब सहारन अफ्रीका में कल्टिवेशन सारी औरतें करती हैं, वहाँ पे मेल प्लॉट्स और फीमेल प्लॉट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं जिनमें ट्रेडिशनली फसल ही औरतें लगाती हैं, ठीक है? और 36 ऐसी सोसाइटियाँ थी इनमें जिनमें कुकिंग एंड चाइल्ड केयर वाज अ कॉमन टास्क, मर्द भी करते थे, औरतें भी करती थी, कोई डिफाइंड नहीं था कि ये सिर्फ औरतें ही करेंगी, यानी जो अवेलेबल होता था करता था। तो ये सेक्सिस्ट जो स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड है, हमने इनको चैलेंज करना है थ्रू दीज स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स, और फिर हमने औरतों की लीडरशिप को प्रमोट करना है। स्ट्रैटेजीज क्या होगी? मुझे लगता है मेरी टॉक बहुत लॉन्ग एंड बोरिंग है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर रही हूँ। स्ट्रैटेजीज ये होंगी कि हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव टीचिंग एंड लर्निंग करनी, यानी पहला असूल ये है कि ट्रेन द ट्रेनर, जिसने लीड करनी है ये जो स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स है उसकी जेंडर सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू ट्रेन द ट्रेनर सो दैट दे कैन इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग टू अदर पीपल। फिर आपने क्या करना है, आपने अनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी है फॉर जेंडर इक्विटी, मेक दीज सर्कल्स so that resources are allocated to the idea of gender inclusion and gender justice in them. Resources के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता ना, आप उनको करें। फिर relevant and meaningful education for girls and boys, तो ये बहुत important है। and then democratic educational processes, ये सारी strategies हैं जो आप employ कर सकते हैं इस किस्म की training के लिए, और आप अपनी जो स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स हैं उसको ज़्यादा जेंडर इंक्लूसिव बना सकते हैं, एमिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन थ्रू इनइक्वालिटी, थ्रू टारगेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. I would like to thank you all for patiently listening to me. It's a subject that I can speak on for hours, लेकिन इंशाल्लाह in the future I'd like to interact अभी मैं इस उम्मीद के साथ आगे जाऊंगी कि इस साल आपने
जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस पे बात किया, अगले साल आप इस पे ज़रूर कुछ सेक्शन रखेंगे कि जेंडर जस्टिस कैसे स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इंस्टीट्यूशंस बनाती है जो सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।